Assalamu alaikum everyone. Today we are again live with another exciting session of Your Rahnamai. Today we'll be talking about what is the best way to apply for masters and thinking about what you really want and then going for the right degree in the right country if you want to go abroad and if you want to just study in Pakistan because many sometimes you don't really need to go abroad and you're just thinking that maybe I want to go abroad and it's because it becomes like a stereotype or like a enigma to us. So maybe you don't need it and maybe you really need it. So we are gonna go live in about we're gonna start talking in about 2 minutes. We're gonna wait for audience to engage with us so that we have enough people watching us and we can go further. So that so I guess we can start now. It's 7:31. Today our Assalamu alaikum again. Today our topic is very interesting. It's I got the idea from a meme that I saw and related so much to it. That do I really want to do masters or do I just want to get out of the country? So for today, for this topic, the best person that came to our mind was Suhaib Niazi, who has been working with students who've just done their undergraduate. He's been coaching them towards their Erasmus Mundus. He's an Erasmus Mundus alumni. He has been a life coach. He specializes in talent management, and he runs a page for people who are looking for to apply abroad for masters as well. So Suhaib, tell us about how you differentiate between students who wants to go to masters. We talked before and you told me there are three categories. Can you shed some light on that? Yeah. So first of all, hello, Rabail, and hello to everyone listening. Thank you for this opportunity to run on my and to your platform. I'll be discussing a few things related to the master's degree and whether some people, as you said, wanted to go abroad. So primarily, once we talk about people who have an ambition to go abroad for educational purposes, we generally categorize them into three major chunks. One portion of students are the ones who have already like qualified some level of degree, for example, masters from abroad, and they're looking for still higher education, PhDs, postdoc trades, or different research exchanges. And the second one is regarding those people who want to go abroad and want to settle over there. For example, they want to apply for the PRship or residence, etc. And the third category is the kind of people like me who go abroad to study and get a degree and come back and serve their own country for different purposes. Maybe they'll have to come back, or the scholarship requires that. So these are primarily three categories which we aim at while discussing scholarships. All right. So, as we talk about these three categories, we move further. And can you tell us, talk to you about what a person should be thinking when they are in their final year of their undergraduate, and how should they go for a 2 year? Because some of the scholarships that are given for abroad, they require 2 year experience beforehand. मतलब 2 साल का Mhm. एक्सपीरियंस जॉब के लिए चाहिए होता है कि क्या जॉब के लिए डायरेक्ट जाना चाहिए या मास्टर्स के लिए डायरेक्ट जाने के बंदे को क्या थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए सर प्रोसेस के लिए? Okay. सो जहाँ तक बात है कि आपको इट्स वेरी गुड क्वेश्चन कि सबसे पहले हाउ शुड यू बी लुकिंग एट स्कॉलरशिप्स एंड व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स व्हाइल यू आर अप्लाइंग टू स्टडी अब्रॉड. देखें, इसका कोई अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद अ कैवियट दैट देयर इज नो वन शू साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन. वन हैज टू लुक एट डिफरेंट different benchmarks and different criteria.
क्योंकि हर स्कॉलरशिप की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस हर इंसान की जो मतलब उसकी जो प्रोफाइल है दैट इज़ डिफरेंट, एंड जो उसकी एलिजिबिलिटी है, उसकी कॉम्पिटेंस है, प्लस उसका जो फील्ड है, दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स कि विच काइंड ऑफ स्कॉलरशिप और विच काइंड ऑफ कंट्री और अपॉर्चुनिटी वुड बी बेस्ट सूटेड टू दैट पर्सन। लेकिन जो कुछ चीज़ा चीज़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें 5-7 मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली, कि एक तो मतलब प्राइमरीली वी टॉक अबाउट मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल scholarships. There are very few undergrad scholarships, but I generally don't recommend them, and they're not as such needed, or they're not worth like trying. To be very frank, so we have very good undergrad level of education already in Pakistan and in several countries. So first of all, you will have to have 16 years of education in most of the cases. Some scholarships like Fulbright, Erasmus वगैरह जो है वो आपको allow करते हैं to apply on waiting result basis. Fulbright wants you to graduate in the same year. For example, if you are applying in June 2020, you'll have to have the degree by December 2020. Erasmus allows like थोड़ा बहुत डिले 2-4 महीने अगर आपके रहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. तो पहली बात तो अंडर ग्रेड डिग्री यू विल हैव टू हैव बिफोर लाइक गेटिंग अब्रॉड. Secondly, some of them would require English course. US or North American schools like Canada or US में you require TOEFL. In Europe, in all European Union countries, most of them Erasmus वगैरह आपके Scheveningen है, Commonwealth shared है, most of them require IELTS score. Again, थोड़ी बहुत exceptions हर जगह होती हैं, लेकिन generally speaking, English score is required for most of the countries. बाकी जो आपकी ठीक है. कुछ और scholarships हैं, I'll be talking about different tiers. For example, third tier जो scholarships हैं कुछ उधर required नहीं होता, but we'll talk about that later. और एक और चीज़ जो important है वो ये कि टेस्ट स्कोर्स, सम ऑफ देम डू रिक्वायर GRE वगैरह, जैसे फुल ब्राइट में या यूएस के स्कूल्स में अगर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर रहे हो फॉर स्कॉलरशिप्स या डायरेक्ट PhDs आफ्टर अंडर ग्रेड. सो पीपल मस्ट नो कि यूएस में यू कैन अप्लाई विद इन अंडर ग्रेड टू PhD डायरेक्टली. यू डोंट नीड अ मास्टर्स डिग्री टू अप्लाई, लेकिन दैट इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू आर अप्लाइंग डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी, नॉट थ्रू फुल ब्राइट. सो ये एक आपके 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, एक आपका इंग्लिश स्कोर, एक आपका टेस्ट स्कोर इफ रिक्वायर्ड, और बाकी तो आपके जनरल लेटर्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वेरी फ्रॉम स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप. ठीक हो गया. अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि अब जो है वो हालात थोड़े डिफरेंट हो गए हैं. टेस्ट सेंटर्स में GRE के लिए जो USFP डेट दे रहा है वो मुसलसल बढ़ाई जा रहा है. अभी पिछले दिनों जो थी इट वाज 1st June, and now they have extended the date further to 15 June. And then Right. there are people who want to do IELTS and then टेस्ट सेंटर बंद है. इसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, दिस अ वेरी वैलिड कंसर्न कंसीडरिंग द फैक्ट के द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन. अब ऐसी सिचुएशंस में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फॉर एनीवन, बिकॉज दिस इज नॉट a problem that is related solely to Pakistan or to America or to a certain country. तो इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि things would keep shifting, and all the relevant organizations, relevant जितनी भी आपके platforms हैं, they are trying their best to accommodate students at different levels. So of course वो लोग systematically जा रहे हैं. Like मेरी जहाँ तक बात हुई है USCP और different personnel who are working for similar departments even within Erasmus or Fulbright की जो committees हैं, they are considering it on a gradual basis. Like some of them are of the opinion कि वो थोड़े दिन बढ़ा रहे हैं until things get better, or alternatively they can also go for, like God forbid अगर situation बहुत बुरी होती है तो things could also get delayed to the next year in certain cases. But of course we don't need to like think bad in terms of that. हमारा plan ये होना चाहिए कि what I suggest students is to keep their profiles prepared, and especially those who are selected, उनकी selection पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So we must need to be very flexible about that, number one. And number two, जहाँ तक टेस्ट की बात है, तो टेस्ट अभी रिसेंटली GRE ने अलाउ किया था, जो आपके टेक फ्रॉम होम एग्जाम्स हैं, उसमें पीपल आर रियली स्केप्टिकल, बट इट्स प्रीटी कन्वीनियंट अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है. तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट सिट इन एन एम्प्टी रूम. जिस तरह से आप मॉक स्कोर देते हो ETS की वेबसाइट पे, वैसे ही यू कैन अपीयर फॉर अ टेस्ट. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जब आप टेस्ट ले सकते हो ज़रूर लो. बाकी जिन कंट्रीज़ का इशू है, दैट इज़ बीइंग नोटिफाइड टू द रेलिवेंट एजेंसीज. लाइक USCFP नोज कि अगर पाकिस्तान में GRE कंडक्ट नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन में भी तुमको इशू आ रहा है, so they'll keep on delaying the deadlines, or maybe let's see what happens. But if you can, you should take the test as soon as possible. बिल्कुल सही है. तो अभी बच्चे अक्सर एक चीज़ ये हम करते हैं कि when we are in final year, we are always delaying to take the IELTS exam or TOEFL exam. तो आप what would be your एक बच्चे की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए to take these English proficiency tests? इनको देने की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बिल्कुल ग्रेजुएट करके जो है वो दे रहा है, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है?
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन रावेल। मैं ये क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, और इसका एक बड़ा सिंपल मैं स्कीमा लोगों से शेयर ये करता हूँ कि देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो, यू आर जनरली इन योर लास्ट सेमेस्टर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड यू डोंट नीड टू डिले इट अ Yeah. लॉट। वैसे जाने को तो आप साल 2 साल एक्सपीरियंस के बाद भी जा सकते हो, एंड इन सर्टन केसेस यू रिक्वायर एक्सपीरियंस Mhm. लाइक अचीवमेंट वगैरह में। लेकिन अगर आप फ्रेश जाना चाह रहे हो, एंड स्टूडेंट्स आर जनरली वेरी इंपल्सिव कि बस हमारी डिग्री खत्म हुई है, वी शुड गो अब्रॉड, ठीक है, तो उसमें मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यू शुड हैव ऑल द आर्मरी अंडर योर, लाइक आपके पास सारा कुछ, मतलब आपकी प्रोफाइल के जितने कंपोनेंट्स हैं, दो शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। अब उसमें जो टाइमलाइन फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि आइल्स एंड टॉफल आर वैलिड फॉर 2 years, जीआरई इज वैलिड फॉर 5 years। सो अंडरस्टैंडेबली अगर तो आप फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप्स के लिए जा रहे हो, यूएस कनाडा वगैरह, या जिन मुल्कों में एटलीस्ट आपको जीआरई इज इम्पोर्टेंट, ये जी मैट इफ यू आर अप्लाइंग टू एमबीए फॉर एग्जांपल अब्रॉड, कुछ प्रोग्राम्स में, तो उनके लिए यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। एक तो ये कि दे आर अ लिटिल डिफिकल्ट दैन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एंड सेकेंडली उनकी वैलिडिटी ज्यादा है, ठीक है। सो 5 साल से ज्यादा यू वुडंट बी नीडिंग दैट। इवन अगर आपने एमएस के बाद पीएचडी भी जीआरई देना है तो भी वो आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। सो आई अपीयर्ड इन 2017, और अब मुझे, मतलब आई डोंट नो लॉन्गर नीड इट, लेकिन अगर मुझे पीएचडी भी करना होती तो दैट इज स्टिल गुड इनफ, ठीक है। सेकेंडली तो वो मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि आप 6 to 7 सेमेस्टर में लें। उसकी एक वजह ये है कि वंस यू आर अ स्टूडेंट, यू आर वेल इन टच विद दोस थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स वगैरह, और आपका स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा वो होता है, आपका रिफ्रेशर होता है, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हैं, यू आर अटेम्प्टिंग एग्जाम्स एंड यू आर यूज टू राइटिंग एसेस। अदरवाइज जो लोग खासतौर पे सोशल साइंसेज वगैरह से नहीं होते, दे आर जनरली नॉट हैबिचुअल ऑफ दीज थिंग्स, तो वो जब जॉब्स पे चले जाते हैं, इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट बैक इन टच विद बेसिक मैथमेटिक्स, एकेडमीज ज्वाइन करना, ठीक है। और आजकल तो इस तरह से है कि सिचुएशन ये है कि पीपल आर जनरली इन द लॉकडाउन, सो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यू शुड स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम इन 4 to 6 सेमेस्टर, और जो आपके लैंग्वेज टेस्ट हैं, अपीयर इन देम एज लेट एज पॉसिबल, बट बिफोर कंप्लीटिंग योर डिग्री। फॉर एग्जांपल योर लास्ट सेमेस्टर कुड बी अ गुड इनफ पॉइंट। और आइल्स और टॉफल के लिए आई रिकमेंड कि आपको कोई बहुत ज्यादा यानी मेहनत की जरूरत नहीं होती, इफ यू जनरली हैव qualified 16 years Mhm. of education, so even 10 to 15 days of preparation should be more than enough. ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग फॉर I'm applying for Fulbright and I'm also applying for Erasmus Mundus in Europe, or maybe Mm-hmm. I'm applying to Australia as well. So do I Mm-hmm. need to do IELTS and TOEFL both, or do I just need to do TOEFL, or do I just need to do IELTS? अच्छा, इस केस में होता यह है कि इफ देयर इज अ लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उसमें मसला ये होता है कि ये जो आपके टेस्ट है ना, दे आर वेरी मतलब स्पेसिफिक। जो इरस्मस है ना, दैट इज वेरी लिबरल, Hmm. क्योंकि वो कोई यूके डायरेक्टली रन नहीं कर रहा। सो देयर आर अदर मोटिव्स, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन जनरली स्पीकिंग इरस्मस में सारे प्रोग्राम्स जो आइल्स कंपलसरी है जहाँ पर, वहाँ पे वो टॉफल भी ले लेते हैं, लेकिन यूएस वुड नेवर एक्सेप्ट आइल्स, ठीक ठीक है। है, 99% ऑफ द केसेस, और कम से कम फुल ब्राइट में तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए यू शुड ट्राई टू गिव टॉफल अगर आप दोनों जगहों पे अप्लाई करें, इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी एंड मनी। और कुछ केसेस में ऐसा है कि जहाँ पे अगर आप यूरोप में डायरेक्टली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टू यूके स्पेशली, या जो कंट्रीज खुद आइल्स बनाती हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो उन कंट्रीज में जनरली कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी लाजमी जो आपसे टॉफल नहीं लेंगी, तो उस केस में यूल हैव टू अपीयर इन बोथ। लेकिन इन शॉर्ट अगर आप एरास्मस और फुलब्राइट पे कर रहे हैं तो जस्ट टॉफल है, और अगर आप यूके ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्टली कहीं अप्लाई कर रहे हो या उनकी किसी स्कॉलरशिप पे, दे जस्ट नीड आइल्स, दे वोंट एक्सेप्ट टॉफल, सो इन दैट केस अनफॉर्चुनेटली यूल हैव टू अपीयर ठीक फॉर है। बोथ। ठीक है। अच्छा, तो अब अगला सवाल ये आता है कि अक्सर लोग अपनी प्रोफाइल जब बिल्ड कर रहे होते हैं, तब ये सवाल आता है कि कितना जॉब एक्सपीरियंस मिनिमम है हम्म। फॉर व्हेन यू थिंक अबाउट स्टार्टिंग टू अप्लाई फॉर इट। अब क्या, हम्म। और एक और सवाल इसमें बीच में मैं चाहूंगी आप इसको भी रख लें कि इंटर्नशिप जो है क्या वो भी जॉब में आती हैं, और किस तरह की जी। इंटर्नशिप जॉब में आती हैं? अगर आप कोई हम्म। प्रोजेक्ट लीड किया होता है, क्या वो जॉब में आ रही है, मतलब कि कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट, तो क्या क्या इसकी डिफरेंशिएशन है? जी। इसमें होता है ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स चूंकि इसमें एक्सेप्शन एक है, मैं बाद में उसमें बात करता हूँ। जनरली जो इसका जनरल मैकेनिज्म है फॉर मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स, अगेन आई कीप रिपीटिंग दैट क्योंकि कुछ चीज़ें वेरी करती हैं। एक जो अचीवमेंट स्कॉलरशिप है यूके का, दैट इज फॉर मिड करियर प्रोफेशनल्स, दैट इज अ लीडरशिप बेस्ड स्कॉलरशिप। उसको आप जो है ना, उसके लिए आपको 2 years एक्सपीरियंस चाहिए, बट वो उसमें आपकी इंटर्नशिप्स, आपकी कोई भी चीज़, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स, वो सब कुछ कंसिडर कर लेते हैं। इवन अगर आपने कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, यू कैन प्रूव कि आपका ये एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल आई हैव वर्कड इन सिटीजन फाउंडेशन फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एज अ मेंटोर, तो मैं उसको भी काउंट करवा सकता हूँ। आई वर्क फॉर लाइक सोसाइटीज इन लम्स, तो मैं उसको भी काउंट करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2 years से कम है, आप वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स आर जनरली ओरिएंटेड टूवर्ड्स यंगर लॉट, ठीक है। तो जो डिग्री बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं उनकी जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्सपीरियंस। हाँ, जब हम अक्सर लोग इससे बॉदर होते हैं क्योंकि यू विल सी के एरास्मस के मोस्ट ऑफ द पीपल हैव
1 year experience, 2 years experience, 3 years experience, as many as like 11 years experience भी है कुछ लोगों का, ठीक है। तो बात यह है कि once I applied, मेरा भी 8 सेमेस्टर शुरू भी नहीं हुआ था अंडरग्रेड का when I applied to Erasmus back in 16-17, ठीक है। अच्छा। तो इससे ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेट सेलेक्टेड, उसमें आपकी एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, वो ये कि एलिजिबिलिटी और मेरिट में डिफरेंस है, ठीक है। सो एक्सपीरियंस इज नॉट नीडेड टू अप्लाई फॉर 95 to 98% स्कॉलरशिप्स, बट इट डज हेल्प। अगर वो रेलेवेंट हो तो जाहिर है आपके मेरिट स्कोर में काउंट करेगा। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि आप अप्लाई करने को तो जस्ट विद अ डिग्री यू कैन अप्लाई, बट इफ यू हैव अ हायर सीजीपीए, यू हैव अ हायर जीआरई, ऑफ कोर्स योर चांसेस आर मोर। तो अगर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में एमएस करना है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करना है, और उस बंदे ने कोई 1 साल के लिए फॉर एग्जांपल लेस्को में या वापडा में जॉब की है, तो डेफिनेटली बात है ही माइट गेट अ लिटिल बिट ऑफ एन एज ओवर अ पर्सन हु इज जस्ट इन द 7th 8th सेमेस्टर। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स ऑफन मिस परसीव के जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप मुझे वो बता दें जीपीए कितना चाहिए, जीआरई कितना चाहिए। नो, इसका काम नहीं होता। हर स्कॉलरशिप्स का एक कॉम्पोजिट स्कोर होता है बेस्ड ऑन उसके जो क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वो उसका ओवरऑल मेरिट स्कोर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 7th सेमेस्टर में यू गेट डिसहार्टेड कि अच्छा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आई विल नॉट गेट इन, एंड मोस्ट ऑफ such students don't even apply, and you see people who are in 7th 8th semester they get in क्योंकि आप अप्लाई नहीं करते, ठीक है। सो इसलिए देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट। इसी तरह से कई लोग समझते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और आई एम अ मदर विद अ चाइल्ड, हाउ वुड आई बी एबल टू ट्रैवल अब्रॉड। सो मैं आपको ये बता चलूं कि आई हैव डेल्ट लाइक मोर देन 20 पीपल जो कि मैरिड हैं, दे हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड ऑन फुल ब्राइड एरास्मस विद देयर चिल्ड्रन, ठीक है। एंड दे आर मतलब सुपर सक्सेसफुल, एंड स्पेशली लास्ट ईयर एरास्मस में देयर इज अ कपल जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों को स्कॉलरशिप मिला, ठीक है। सो इस तरह के केसेस बिल्कुल होते हैं। सो इसलिए कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है कि आप ये कहें कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है, नहीं। तो वो इट ऑल वर्क्स इन एनी केस। और दूसरी चीज आपने पूछी रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स, तो जैसे मैंने कहा कि अचीवनिंग वगैरह उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी मैंने ऐसा कभी फुल टाइम स्कॉलरशिप डिग्री वाली कभी नहीं देखी जिसमें कभी एक्सपीरियंस एज सच भी कंपल्सरी। मोस्ट ऑफ द मेजर स्कॉलरशिप्स कोई और स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं। बाकी जो मिड करियर होती हैं जिस दे आर तरह वो जनरली नॉट दाद डिग्री है, बेस्ड। जी कि हाँ, जैसे दाद सॉरी, बिल्कुल स्कॉलरशिप सही। है। वो बिल्कुल दैट रिक्वायर्स, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, जर्मनी की जो स्कॉलरशिप है दैट डेफिनेटली रिक्वायर्स 2 years ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस। वो आपके इंटर्नशिप्स को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए यू हैव टू शो ठीक पोस्ट है। ग्रेजुएट एक्सपीरियंस, ठीक है। उसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट 16 years ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंस। तो अगर आपका एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल आपने अंडर ग्रेड के साथ वॉलंटियर किया या इवन अगर आप फुल टाइम स्टार्टअप या जॉब भी कर रहे हो, इट वुडंट बी काउंटेड इन दैट। उसके अलावा आपने ये देखना है कि जो आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह हैं जनरली दे आर काउंटेड, मतलब बेशक उस लेवल पे नहीं लेकिन इनका कुछ ना कुछ मेरिट स्कोर है। फॉर एग्जांपल इफ आई वाज अप्लाइंग टू एन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मास्टर्स और मेरी सारी इंटर्नशिप्स क्लोज टू 1 year, जो 3-4 इंटर्नशिप्स थी वो सारी रेलेवेंट थी, तो डेफिनेट सी बात है उसमें एक्सपीरियंस की वेटेज जरूर थी, ऑल्दो इट वाज नॉट कंपल्सरी टू अप्लाई। तो वो जो 20% वेटेज थी उसमें डेफिनेट सी बात है मुझे कुछ स्कोर मिला होगा। सो ठीक हो गया। इसमें एक रिकमेंडेशन ये अच्छा। है, एक रिकमेंडेशन, सॉरी आई विल जस्ट कंप्लीट द लाइन, कि इसमें एक रिकमेंडेशन ये स्टूडेंट्स के लिए कि आप अंडर ग्रेड में अपने समर्स को बड़े प्रोडक्टिवली यूज करें। अब तो थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन जनरली व्हेनेवर यू हैव टाइम। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल से बता चलूं कि आई इंटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम जब मेरे 4th सेमेस्टर खत्म हुआ था इन पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन बॉदर एट दैट टाइम, ठीक है। सेकंड मैंने इंटर्नशिप की 6th सेमेस्टर के बाद, बोथ ऑफ दीज वर ऑप्शनल, मैंने अपनी मर्जी से किया। 7th के बाद आई वाज रिक्वायर्ड, मैंने 7th सेमेस्टर के साथ फुल टाइम इंटर्नशिप की इन लाइक वेरी गुड कंपनी इन पाकिस्तान, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने अपना 7th सेमेस्टर किया, एंड 4th व्हेन आई डिड विद माय मास्टर्स एट एरास्मस, ठीक है। तो आपके पास जब भी जितना टाइम हो ऑलवेज कीप ऑन एडिंग थिंग्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, आपके जितने भी आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार्स, कोर्सेरा वगैरह पे जो कोर्सेज हैं, एमडब्ल्यूओसीज, दे आल्सो हेल्प अस। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द टीयर जिनके बारे में आप बात कर रहे थे कि कौन से टीयर्स होते हैं स्कॉलरशिप्स के, जो कि आपको आप हमारे जो दुनिया में मौजूद हैं इस वक्त। श्योर। सो हमारे पास पाकिस्तान से जो जाने वाले लोग हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द लॉट दैट माइट बी वाचिंग दिस वीडियो, हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और मैं बड़े आसानी से उनको सेग्रीगेट करके आपको मतलब थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन लोगों की बात कर जी। लेते हैं जिन्होंने बाहर जाना है फॉर मास्टर्स या पीएचडी एंड दे हैव टू कम बैक लाइक मी। उस केस में होता ही है कि यू शुड टारगेट ऑल दोस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स जो कि जहाँ पे आपको या तो आना वापस जरूरी है, सो दैट इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल फुल ब्राइट, जहाँ पे यू नो कि जितना अर्सा आप वहाँ पे गुजारोगे यू विल हैव टू कम बैक टू सर्व योर कंट्री और एनी अदर कंट्री, बट यू कैन नॉट गो बैक टू यूएस अनलेस यू स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ
टाइम इन सम अदर कंट्री और इन पाकिस्तान जितना आपने अमेरिका में गुजारा होगा, चाहे वो 10 महीने का मास्टर्स है या 2 साल का है या 5 साल की पीएचडी, वट एवर इज दैट टाइम पीरियड। तो एक तो की स्कॉलरशिप्स आर कंड्यूसिव टू दोस काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। या फिर आप ऐसे स्कॉलरशिप्स पर जाएं जहाँ पे देयर इज नो ऑब्लिगेशन लाइक इरास्मस या मोस्ट ऑफ देम कॉमनवेल्थ शेयर्ड कॉमनवेल्थ वगैरह, ठीक है। कॉमनवेल्थ में आई थिंक वापस आना होता है शेयर्ड मनी, ठीक है। सो ये स्कॉलरशिप्स हो गई। अच्छा, जब आपको ये लग, और ये भी चीज ध्यान में रखें कि स्कॉलरशिप्स को हम जनरली 3 टीयर्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 टीयर विद रिस्पेक्ट टू मेरिट इज, अगेन ये रफ क्राइटेरिया, डू नॉट टेक इट एज अ वर्ड ऑफ लॉ कि मैं बता रहा हूँ तो दैट इज फॉर श्योर कि ये स्कॉलरशिप्स इज ऑलवेज बेटर देन दी अदर। उसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जैसे मैंने मेंशन किया, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। लेकिन रफली स्पीकिंग फॉर अ पाकिस्तानी कैंडिडेट जो आपका नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यूएस, कनाडा, या जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जनरली आप इन कंट्रीज को जनरली फर्स्ट ईयर समझते हो। अगेन द वर्ड जनरली इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड ईयर में आपके पास आ जाती हैं, या क्लोज टू फर्स्ट ईयर में आपके पास आ जाती हैं, आपके पास एरास्मस, ठीक है। जितनी भी आपके पास यूरोपियन कंट्रीज हैं, यू गो टू जर्मनी, फ्रांस डायरेक्टली। जो लोग, ये इंजीनियर्स काफी ज्यादा लोग जर्मनी जाते हैं लाइक लॉक्ड अकाउंट वगैरह, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड ईयर है। और थर्ड ईयर के अंदर आपके जो थोड़े से सराउंडिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यू गो टू चाइना, यू गो टू टर्की या मलेशिया, ये जो थोड़ा सा आपके जो मतलब इस तरफ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, या सऊदी अरेबिया वगैरह में पीपल गो फॉर इंजीनियरिंग, किंग फाहद वगैरह में, दीज आर जनरली कंसीडर्ड थर्ड ईयर, ठीक है। लेकिन अगेन अब इसमें आपके लिए ठीक क्या है चीज अच्छी होगी, आपके लिए फर्स्ट ईयर क्या होगा, दैट वुड वेरी। उसको मैं 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्टली, अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इन एन ऑपोजिट मैनर। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आर इंग्लिश स्पीकिंग, सो दे शुड बी फर्स्ट ईयर। लेकिन फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू यूके और आप अपने जेब से 50 लाख रुपए भर रहे हो वर्सेज यू आर गेटिंग एन एरास्मस विच इज टोटली फ्री, तो डेफिनेट सी बात है, इन दैट केस यू वुडंट प्रेफर दैट फर्स्ट ईयर। सेकंडली, अगर आपको फुल ब्राइट मिल रहा है एंड यू डोंट वांट टू कम बैक, ठीक है, यू वांट टू सेटल ओवर देयर, तो फिर एरास्मस इज बेटर, कॉमनवेल्थ इज बेटर, कॉमनवेल्थ शेयर्ड इज बेटर, या ऑस्ट्रेलियन ओपन, कैनेडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, दीज आर बेटर, ठीक है। सो इसलिए ये आपकी प्रेफरेंसेस पे, आपकी प्रोग्राम्स पे भी डिपेंड करता है। इसी तरीके से कुछ प्रोग्राम्स के लिए कुछ कंट्रीज फेमस नहीं होते, जैसे जर्मनी इज वेरी फेमस फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल डिग्रीज, बट इफ आई वांट टू डू लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन दीज सब्जेक्ट्स जनरली जर्मनी इज नॉट दैट गुड, ठीक है। सो यू विल हैव टू टारगेट फ्रांस और probably some other country which might not be hypothetically first year, but आपके लिए वो कंट्री ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये वेरिएशंस आपको देखनी ठीक पड़ती हैं, एंड फॉर दैट यू नीड सम स्पेसिफिक गाइडेंस। ठीक है। चलें, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, विल जस्ट टेक इट राइट नाउ, कि क्वेश्चन था फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, इफ यू कैन आंसर। श्योर। देखिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं आपके पास फर्स्ट टीयर की या सेकंड ईयर की, दे आर जनरली फॉर बोथ डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम फ्यू। फॉर एग्जांपल, इरास्मस अगर डायरेक्टली पीएचडी ऑफर नहीं करता, फ्यू इयर्स बैक इट डिड ऑफर, अब उसकी जगह आप लोग मैरी क्यूरी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फुल ब्राइट में आपके पास वैसे ही मौजूद है, ठीक है। कॉमनवेल्थ शेयर्ड में पीएचडी अवेलेबल नहीं होती। उसके अलावा आप देखो, जितनी भी आपकी मेजर स्कॉलरशिप्स हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन या आपके पास कैनेडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो भी मेजर हैं, या टर्की के अंदर, चाइना में लोग डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई करते हैं, इटालियन पीएचडीज हैं, एक तो ये आपके पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। दूसरी चीज जो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज कंफ्यूज इज, यहाँ पे मैं 2 और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ विद रिगार्ड टू पीएचडीज। नंबर 1, कि आपको मोस्ट ऑफ द जो अच्छे कंट्रीज हैं उनके लिए यू डोंट नीड अ स्कॉलरशिप टू अप्लाई, बिकॉज पीएचडी इन एनी केस इज अ रिसर्च डिग्री, ठीक है। अगर आप पैसों में पीएचडी कर रहे हैं तो देन इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है। आई मस्ट से दैट सम पीपल माइंड इट, बट अगर आप पीएचडी कर रहे हो, इट्स अ फुल टाइम जॉब, ठीक है। इन सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्वीडन वगैरह, वो आपको एम्प्लॉय समझते हैं, योर स्टाइपेंड इज टैक्स डिडक्टेबल, नॉर्वे वगैरह में, ठीक है। सो अब अगर आप फॉर एग्जांपल अमेरिका में अप्लाई कर रहे हो, ऑफ कोर्स उसमें थोड़ी हैसल ज्यादा है, क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन फी भी पे करनी है हर यूनिवर्सिटी को, हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग लेटर्स भी बनेंगे, सो इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई यूनिवर्सिटीज एंड अप्लाई। लेकिन जितने भी लोग डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन यूके और ऑस्ट्रेलिया आर अ लिटिल बिट मोर मनी ओरिएंटेड, आई मस्ट से। लेकिन अमेरिका के पास बहुत अच्छी फंडिंग है। इवन इन वेरी मिडिल टीयर यूनिवर्सिटीज यू विल फाइंड फुली फंडेड पीएचडीज। सोशल साइंसेज में आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग में तो खैर बेतहाशा है, ठीक है। तो वो वैसे भी फंडेड होती है, इसलिए यू डोंट नीड टू जस्ट रिलाई ऑन स्कॉलरशिप्स। मास्टर्स के लिए व्हाई डू वी नीड अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम? क्योंकि अगर मैंने साइकोलॉजी पढ़ने जाना है और फॉर एग्जांपल यूरोप में पढ़ने जाना है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वुडंट बी फंडेड, या इस लेवल पे फंडेड नहीं होगी कि मैं उससे अपनी लिविंग और एकोमोडेशन, इंश्योरेंस, सब कुछ, ट्रैवल फंड कर सकूं। इसलिए वी आर obliged to follow some scholarship program, but for PhD in most cases you don't need it. Second clarification मैं ये देना चाहता हूँ कि आपके पास कुछ कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल कनाडा में रेयरली, लेकिन यूएस में तो डेफिनेटली, अगर आप लायक हैं, अगर आप जीआरई दे सकते हैं, सो यू डोंट इवन नीड अ मास्टर्स डिग्री, आप डायरेक्टली अप्लाई करो फॉर अ पीएचडी। फॉर एग्जांपल, आप हार्वर्ड में अप्लाई कर रहे हो, मिशिगन में अप्लाई कर रहे हो,
मिनेसोटा में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जगह अप्लाई कर रहे हो, उधर डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन है। डायरेक्ट पीएचडी का मतलब ये है कि यू जस्ट हैव एन अंडरग्रेड, आपने जीआरई और टॉफल दिया हुआ है, आपने एसओपीज वगैरह बनाया, आपने उन यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया, उनकी एप्लीकेशन फी दी, वो भी रेयरली अगर आप उनको रिक्वेस्ट करो ईमेल के थ्रू तो वो वेव ऑफ कर देते हैं। और आपके पास अगर खास तौर पे कोई अच्छा रिसर्च प्रपोजल है या आपके पास कोई पब्लिश्ड एक दो पेपर्स हैं या कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी हैं, सो या नहीं भी है, समटाइम्स नहीं भी होते, आई हैव सीन मेनी पीपल एट लम्स जिनके पास कोई पेपर्स नहीं है, दे आर वेरी यंग, बायोलॉजी वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में, दे गेट सेलेक्टेड डायरेक्टली एंड दे आर लाइक गेटिंग 2000 2500 यूएस डॉलर्स अ मंथ। तो इसलिए आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, स्कॉलरशिप्स भी, डायरेक्ट एडमिट्स भी, एंड देन यू कैन आल्सो लाइक चेक विद सम अदर कंट्रीज जहाँ पे एमएस के बाद यू कैन गो फॉर अ। अच्छा, डायरेक्ट एडमिट्स का प्रोसेस होता है वो इन यूनिवर्सिटीज की अपनी वेबसाइट पे ही मौजूद होता है ना? कोई सी कहीं और बिल्कुल नहीं आपको जाना पड़ता? बिल्कुल नहीं, उसके लिए ये कि उसके लिए कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन अगेन नहीं होता। दिस इज व्हाई मोस्ट पीपल डोंट नो दैट कि वो हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है, और मोस्टली 90% ऑफ द यूएस यूनिवर्सिटीज ऑफर स्कॉलरशिप्स फॉर द फॉल बैच, ठीक है। तो वो रफली अराउंड अक्टूबर टू दिसंबर जनवरी वाला टाइम होता है जब आप अप्लाई करते हो। इसी वजह से फुल ब्राइट क्यों जल्दी एप्लीकेशन फिल करवाता है मई जून में, क्योंकि वो जब आपसे एप्लीकेशन लेंगे तो उन्होंने आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, एंड ओनली बाय जनवरी फेब दे टेल यू बैक वेदर यू हैव बीन एडमिटेड और नॉट आफ्टर योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस इन अक्टूबर। सो रफली आप अक्टूबर से दिसंबर जनवरी की ब्रैकेट में अप्लाई करते हो डायरेक्टली। हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होगी, अपने प्रोसीजर्स होंगे और अपनी स्कॉलरशिप्स के वेरिएशन होंगी। फेलोशिप उस स्कॉलरशिप को कहते हैं जिसमें यू आर फंडेड कंप्लीटली, जिसमें आपको कोई जॉब नहीं करनी, यू आर जस्ट गेटिंग अ स्टाइपेंड, ठीक है, लाइक फुल ब्राइट। और सेकेंडली आपके पास कुछ होती है टीआरएशिप्स, जिसमें थोड़ा सा नीचे का टीयर होता है कि आपको साथ टीचिंग असिस्टेंटशिप करनी पड़ती है, आरएशिप डिपेंडिंग ऑन योर लेवल एंड एक्सपर्टीज। और तीसरा लेवल ये होता है कि समटाइम्स उससे भी थोड़ी कम पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिस केस में वो आपको टी ए आर ए शुरू में नहीं रखते, मे बी बिकॉज यू आर अ लिटिल जूनियर या अभी आपका एक्सपर्टीज लेवल वो नहीं होता, तो आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स दे देते हैं, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स के साथ एज अ स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह। सो यू आर गेटिंग पेड बाय दैट एंड यू आर अ फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट एट द सेम टाइम। सो देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस। और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बता चलूँ जो अक्सर लोगों को नहीं पता, कि फुल ब्राइट में जब लोग पीएचडी पे जाते हैं ना, फुल ब्राइट में आप डायरेक्ट पीएचडी पे नहीं जा सकते, उसमें फुल ब्राइट की रिक्वायरमेंट है यू मस्ट हैव 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। उस केस में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पीएचडी में स्कॉलरशिप लेते हैं फुल ब्राइट, और जो उनको पैसे मिल रहे होते हैं ना, दे आर जनरली फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। वो एक फेलोशिप ही होती है, अगर आप फुल ब्राइट से नहीं भी जा रहे होते ना तो आपको वही पैसे मिल रहे होते हैं, बट जस्ट बिकॉज यू आर ऑन फुल ब्राइट, सो फुल ब्राइट वही अमाउंट उस यूनिवर्सिटी से लेके आपको ट्रांसफर कर देते बिल्कुल। यहाँ पे एक कमेंट में आया है कि जापान आल्सो ऑफर्स मैक्स हैं। स्कॉलरशिप, तो इफ एनीवन इज लुकिंग बिल्कुल, आउट फॉर इट, दैट्स अनदर कंट्री टू लुक फॉर। अच्छा, डेफिनेटली सोहेब, डेफिनेटली। ये हमने बात कर ली। हम्म, ये हमने बात कर ली कि कौन से टीयर्स होते हैं और आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो कैन यू टेल अस मोर अबाउट एनी कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज जहाँ पर आप जो हैं विच वेबसाइट्स विच आर लाइक वन स्टॉप फॉर एवरीवन, कि जहाँ पर जाकर आप जो है ना एक जगह पर आप स्कॉलरशिप्स ब्राउज कर सकते हैं? देखें, अगेन दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस पार्ट ऑफ योर करियर एंड इन दिस पार्ट ऑफ लाइक योर एज। यही प्रॉब्लम होता है कि वी जनरली लुक फॉर, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द रीजंस, कि समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एप्लीकेंट्स टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एट वन स्टॉप। बट ये क्यों मुश्किल है, इसकी दो रीजंस हैं। एक तो ये कि कोई भी प्लेटफॉर्म सारी चीजें कवर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हर चीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर दफा वेरी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लें, इससे फुल ब्राइट की डेडलाइंस आर वेरिंग, ठीक है। सो नो वन प्लेटफॉर्म would have the most updated information for every year for every kind of scholarship, ठीक है। that is not impossible but currently I don't think that there is one, so इसलिए I don't want to misguide anyone, इसलिए पहली बात तो ये है। and this is also good news that you need to work on them। आसान solution इसका ये है कि आप हर प्रोग्राम की, rather than asking for one stop solution, आप हर प्रोग्राम की वेबसाइट्स को पिन करें, ठीक है, उनकी डायरेक्ट वेबसाइट्स हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। हाँ, जब आपको वो मिल जाएंगी फिर मैं आपको कुछ स्मार्ट वेज बता देता हूँ उनको यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप फुल ब्राइट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, यू वांट टू अंडरस्टैंड फुल ब्राइट या फॉर एग्जांपल एरास्मस या फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ या मैक्स, कोई भी चीज है, उसकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं, उसके बारे में पढ़ें, पूरी वेबसाइट एक्सप्लोर करें, कम से कम 3 दफा पढ़ें, और वेबसाइट ऐसे पढ़ें कि जब मैं आपसे पूछूं तो आपको हिफ्ज हुई भी हो। फॉर एग्जांपल, यू आस्क मी अबाउट एनी स्कॉलरशिप, एनीथिंग रिलेटेड टू देम जो मैं डील करता हूँ, आई कैन टेल यू विदाउट लुकिंग एट द वेबसाइट्स, और मैं ये बता सकता हूँ कि वो किस टैब में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो पहली बात तो जल्दबाजी नहीं ठीक करनी, है। उसको समझें, उसके प्रोसेसेस, और अपने क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करके नोट डाउन करें। अब ये मैं प्रोसीजर समझा रहा हूँ विच वी हैव लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस।
आप उसके क्वेश्चंस नोट डाउन करें ठीक है। अपनी तरफ से, जो आपको लगता है कि यार मैं जा सकूंगा, मेरा कोई एज का तो मसला नहीं होगा, मेरे पासपोर्ट का तो ये मसला नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस यूं कम है, मैं उस साल ग्रेजुएट हो रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, राइट इट डाउन ऑन अ वर्ड फाइल। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं है वेबसाइट पे, आज के अच्छा यार यहाँ पे ये चीज लिखी हुई थी, व्हाट डज इट मीन, प्रोग्राम कंट्री, पार्टनर कंट्री क्या होता है। ठीक है, हमें जो वो जीआरई मांग रहे हैं, क्या वो हमें टॉफल भी अभी देना है कि नहीं देना है, इंटरव्यू स्टेज पे देना है, ये क्वेश्चन है ना, आपने इसको लिख लिया। अब आप क्या करोगे, हम्म। अब आप सोशल मीडिया का यूज करोगे, जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, नाउ यू विल गो टू द फेसबुक एंड कोरा एंड डिफरेंट साइट्स जनरली, और अब आप उस पर सर्च करोगे, जो अच्छे ग्रुप्स होते हैं, फुल ब्राइट वगैरह के अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, इरास्मस के अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, इससे हर चीज के अपने स्पेसिफिक ग्रुप्स भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर आप सर्व करो, उनके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, और डायरेक्टली देर आर सम पीपल हु आर डायरेक्टली हेल्पिंग फॉर फ्री, आप उन लोगों से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। प्लस आप सर्च बार को अच्छा यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एडवाइस हमेशा देता हूँ कि पीपल कम टू इरास्मस एंड इन आर ग्रुप इन इरास्मस फाउंडेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन फेसबुक, एंड पीपल डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट थिंग्स। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि पहले गाइड पढ़ें एंड देन यूज द सर्च बार। अगर आप उस सर्च बार में की टर्म भी लिख दो ना, फॉर एग्जांपल पार्टनर कंट्री, विल फाइंड सेवरल पोस्ट, क्योंकि ये वो मसला सिर्फ आपका नहीं है, देयर आर मेनी एप्लीकेंट्स सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स जिनको ये मसले होंगे, जिन्होंने सिमिलर क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपका टाइम भी जाया नहीं होता। मैं हमेशा इस तरह की चीजें ढूंढता था, तो मुझे वो चीजें खुद ही मिल जाती थी, एंड उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यू गेट टू फाइंड दोज पीपल। ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद देम, यू कैन आस्क, अच्छा यार आपने ये चीज पूछी थी, डिड यू फाइंड सम सॉल्यूशन, did you know something, and most of them are actually scholars or some people who have availed that or have answered them। ठीक है, तो एक तरीका ये है। बाकी इंटरनेट पे जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, कोरा वगैरह पे। एक और मैं स्मार्ट रिकमेंडेशन ये देता हूँ कि समटाइम्स पीपल हैव इंटरव्यूज, फुल ब्राइट का इंटरव्यू है, इरास्मस का इंटरव्यू है, स्कॉलरशिप्स के इंटरव्यूज होते हैं। समटाइम्स यू डोंट नो हु वुड इंटरव्यू यू, बट समटाइम्स यू नो। फॉर एग्जांपल इरास्मस डस टेल कि आपका इंटरव्यू किसके साथ है। ठीक है, फुल ब्राइट तो ज़ाहिर है आपको नहीं बताएगा। तो उसमें आप क्या करते हो, आप रिसर्च गेट पे उस बंदे को ढूंढ सकते हो, लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हो, एंड जस्ट रीड देयर प्रोफाइल कि वो क्या करते हैं, उनकी अप्रोच क्या है, उनके मेजर्स क्या हैं, वो किस तरह के रिसर्च एरियाज में काम करते हैं। यू नो कि जस्ट गेटिंग अ लिटिल बिट नो हाउ ऑफ द पर्सन कैन हेल्प यू टू फ्रेम योर आंसर्स अ लिटिल बेटर। ठीक है, और मे बी लिटिल ओरिएंटेड टुवर्ड्स देयर इंटरेस्ट। सो दीज आर द फ्यू टैक्टिक्स। बाकी मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि यू विल फाइंड ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, यू विल हैव टू टेक इट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड देन गैदर इट। और जब आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, तो देन ट्राई टू कनेक्ट विद सम एलुमनाई or students of that scholarship and then get some specific answers from them. ठीक है। अच्छा सर, वी हैव अनदर क्वेश्चन विद अस, इट्स अबाउट कि चाइनीज स्कॉलरशिप के बारे में आप क्या, आपके पास इंफॉर्मेशन है? वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं चाइनीज स्कॉलरशिप से डायरेक्टली कभी मैंने डील नहीं किया। ठीक है, आई एम नॉट रियली वेल अक्वाइंटेड विद इट, हम्म। ऑल्दो इट इज वन ऑफ द स्कॉलरशिप दैट इज ऑफर्ड। मैं उसको जनरली को बहुत हाई रेट नहीं करता। यहाँ पे एक और मैं मिसकॉन्सेप्शन को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान गेज द वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप बाय रैंकिंग। ठीक है, तो मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं कि रैंकिंग जो है ना, दे आर नॉट अ क्रेडिबल क्राइटेरिया टू बेंचमार्क एनी स्कॉलरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कंट्री, द कंट्री यू आर गोइंग टू। फॉर एग्जांपल, यूएस इज कंसीडर्ड अ ग्लोबल लाइसेंस। ठीक है, सो यूएस की अगेन रफली स्पीकिंग, कोई इसमें कोई लॉ नहीं है, लेकिन रफली स्पीकिंग इवन अ मिडिल टियर यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस इज counted as more credible than maybe a very high-fi university in Sweden, for example. Again, लाजमी नहीं है, हो सकता है आपके मेजर्स में स्वीडिश यूनिवर्सिटी माइट बी दी बेस्ट। ठीक है, उस केस में आई वुडेंट से कि यूएस इज बेटर, बट जनरली स्पीकिंग। ठीक है, सो इसलिए मैं चाइनीज स्कॉलरशिप को बहुत ज्यादा रेट नहीं करता, बट इन एनी केस दे प्रोवाइड, चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक generous country in terms of scholarships for Pakistan. So जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, they must apply. Although I haven't dealt with it, तो मैं इसलिए उसकी कुछ specific information नहीं दे सकता। Although they have very like large number of masters and PhD level scholarships available. फिर CSC भी उनके पास है, और directly भी people fly over there. Some of my professors have done PhD from China as well. ठीक है। अच्छा सोहेब टेल अस, अच्छा एक क्वेश्चन है जो मेरे अपने पर्सनल दिमाग में है। एरास्मस मंडेज के लिए आप यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई कर रहे होते हो, तो Hmm. क्या कोई लैंग्वेज सीखना, यूरोपियन लैंग्वेज अगर आपको आती हो, डज इट हेल्प विद द एप्लीकेशन? इफ यू नो फ्रेंच और स्पेनिश और एनी अदर लैंग्वेज, जर्मन अगर आपको आती है, तो डज इट हेल्प विद द स्कॉलरशिप्स? Hmm. इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसका आंसर ये है कि देखें, एरस्मस के 99 या 98% आप कह लो ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर डिग्रीज कंप्लीटली इन इंग्लिश। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि उनकी एकेडमिक्स का जहाँ तक ताल्लुक है ना, उसमें अदर लैंग्वेजेस का कोई खास रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए दे डू नॉट अच्छा। वे इन द अदर लैंग्वेज नॉलेज। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता दूं कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बाकी कुछ दो चार लैंग्वेजेस जो उसके कंसोर्शियम के कंट्रीज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोग्राम है जिसमें
फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक के ऊपर पेपर का है मास्टर्स का, अब उसमें वो लोग एक सेमेस्टर फॉर एग्जांपल जर्मनी में पढ़ाते हैं, और वो जर्मनी में जो सेमेस्टर है दैट इज नॉट ऑफर्ड इन इंग्लिश, ऑलरेडी वेबसाइट पे लिखा होता है कि इसमें अप्लाई वही करेगा जिसको जर्मन की ये वाला लेवल की आती होगी, जर्मन, ठीक है, लैंग्वेज आती होगी, ठीक है। उन केसेस में तो आपको उस लैंग्वेज से ज़्यादा फायदा यूं है कि उसमें अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो यू आर नॉट इवन एलिजिबल। बट जिसमें आप एलिजिबल ऑन इंग्लिश, उन उन प्रोग्राम्स पे आपको अदर लैंग्वेजेस का फायदा नहीं। हाँ, फॉर द सेक ऑफ योर ओन लर्निंग, and for the sake of स्पेशली अगर आपने वहाँ पे सेटल होना इन फ्यूचर, यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल सम ऑफ माय फेलोज फ्रॉम माय बैच इन एरास्मस आर वर्किंग, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे यहाँ से नस्ट वगैरह से, दे आर वर्किंग इन लाइक टेट्रा पैक स्वीडन और डिफरेंट अदर कंपनीज इन जर्मनी वगैरह। उन लोगों को बड़ा फायदा हुआ, वो लैंग्वेजेस सीख के उनको जॉब पे बड़ा फायदा हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अपने प्रोग्राम के उस सेक्शन में जहाँ पर विल बी टेकिंग एक्टिव क्वेश्चन एंड विल बी डायरेक्टली आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो हाँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, टेल अस अबाउट पीआर अपॉर्चुनिटीज। आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट हम्म, इफ यू हैव एनी आइडिया हम्म, व्हाट ही इज आस्किंग अबाउट, देखिए, प्लीज आंसर। देखिए जो परमानेंट रेजिडेंस के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं ना, उसमें मैंने ये बिल्कुल लिखा भी था उसके ऊपर, वी फॉरगॉट टू मेंशन अ फ्यू थिंग्स, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इसमें मैं दो चीजें ही मेंशन करना चाहता हूँ कि पीआर के लिए पीपल जनरली सीक अपॉर्चुनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, बिकॉज दे आर वेरी जनरस एंड डेवलप्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पीआरशिप फॉर पाकिस्तान। तो ये एक अच्छे कंट्रीज हैं। बाकी जगहों पे भी कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन दे हैव डिफरेंट लॉज। फॉर एग्जांपल इटली में भी पॉसिबल है, फ्रांस में भी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर कनाडा ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ईजी है। सेकेंडली, दे आर वेरी प्रॉस्परस टू अर्न एंड सेव सम मनी, एंड थर्डली बिकॉज दे आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, तो मोस्ट पाकिस्तानीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इट इज ईजियर टू गेट इन देयर, ठीक है। अब उसके ऊपर यह कि अगेन प्रोसीजरल तो मेरे पास अभी ज़ाहिर है हर चीज़ नहीं खुली हुई, दे आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, आई वुडंट बी गोइंग इनटू प्रोसीजर्स, बट दो तीन एडवाइसेस हैं। एक तो ये कि जनरली आपने कनाडा या ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर किस बेसिस पर करना है, स्पेशली आप किस लेवल पे जा रहे हो। अब देर आर पीपल जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता होना चाहिए कि पीआरशिप के लिए देयर इज अ लिस्ट ऑफ सम प्रोफेशंस जो कि वो हर साल अपडेट करते हैं, एंड ओनली दोज पीपल आर लाइक प्रेफर्ड और एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो पहले तो उस लिस्ट को चेक करना जरूरी है। सेकेंडली, देखना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस है उसमें, या आप सिर्फ स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हो। तो अगर आप स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हो तो आपको किन स्टेट्स में रहना है, कौन से काम करने हैं, फॉर एग्जांपल आइट्स का कितना स्कोर आपको चाहिए होगा, आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा उस फील्ड के अंदर, एमएस के साथ आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे पीआरशिप के लिए, पीएचडी के साथ कितने मिलेंगे, या पार्ट टाइम जॉब के साथ। सो सम स्टेट्स विच आर नॉट वेरी कॉमन, फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर अगर आप ऐसी जगह के ऊपर हैं, पढ़ रहे हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर जगह नहीं है, ठीक है, और उन जगहों पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, सो यू गेट मोर पॉइंट्स फॉर योर पीआरशिप इन फ्यूचर देन इफ यू आर स्टडिंग इन अ वेरी लाइक पॉपुलर प्लेस लाइक टोरंटो, ठीक है, या यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो वहाँ पे तो वैसे ही हर बंदा जाने के लिए मतलब तैयार है ना, तो इसलिए दे वांट पीपल टू शिफ्ट टू ठीक प्लेसेस है। जो इतनी पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे यू गेट मोर स्कोर। तो जनरली अगर आपने सेटल होना है तो जनरली यू शुड प्रेफर दीज कंट्रीज, और या फिर उन जगहों पर जाएं जहाँ पे आपको कम से कम आने का मसला नहीं है। इवन इफ फॉर एग्जांपल यू स्टडी इन एरास्मस एंड वंस यू आर डन विद इट, तो यू आर फ्री टू मूव इन शेंजन रीजन एंड देन यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। अगर आपको पीएचडी कनाडा में मिल रही है, यू कैन गो ओवर देयर। लेकिन इफ यू रियली वांट टू सेटल इन अ स्पेसिफिक कंट्री, ट्राई टू स्टार्ट विद दैट कंट्री इफ पॉसिबल फ्रॉम अर्ली ऑन, ताकि आपके क्रेडिट्स पहले से ही ऐड ऑन होते रहें। तो आप चाहे वो मास्टर्स करें, पीएचडी करें, जस्ट गो अलॉन्ग विद दैट कंट्री। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और सवाल यहाँ पर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आजकल के वक्त के हिसाब से, कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, क्योंकि पेंडेमिक जो है वो बड़ा अनसर्टेन है कितनी देर तक रहेगा। इट कुड लाइक एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर तक रहे या अगला साल हो जाए या मजीद 2 साल हम्म, लगे। तो क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या रिस्क लेना चाहिए? क्योंकि सोहेब, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जीआरई क्योंकि अप्लाई करना होता है, जीआरई की बड़ी फीस होती है, इसकी बड़ी फीस होती है, पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट, वो एक ही दफ़ा फीस दे सकते होते हैं। तो क्या इस फिजिबल है कि नहीं है? राइट, देखें यहाँ पे अगेन याद रखें कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, तो मैं एक यहाँ पे एक लेसन देना चाहता हूँ। देखें, हमेशा याद रखें कि दुनिया में आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहेंगे ना, देयर आर नो फ्री लंचेस, सो ट्रेड ऑफ इज ऑलवेज देयर, ठीक है। यू कैन नॉट हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग वाइल कीपिंग योर सेल्फ टू सिक्योर। तो आपको रिस्क हमेशा लेना होता है, लेकिन मेक श्योर दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। अब यहाँ पॉइंट किया है कि डेफिनेट सी बात है, देयर इज अनसर्टेनिटी, दीज टेस्ट आर एक्सपेंसिव एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी ट्रू, बट एट द सेम टाइम इफ वी से कीप ऑन सेटिंग एंड वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन ऑन देयर ओन, तो देन डेफिनेटली हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, एंड अदर पीपल हु वुड बी एक्टिवली वर्किंग ऑन देयर प्रोफाइल्स एंड एक्टिवली गिविंग दीज टेस्ट, उनके पास ना चीजें पूरी होती हैं। तो याद रखें कि आपको ना साइकोलॉजिकल एज होता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अब ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पिछले सालों में जीआरई दिया हुआ है, उनके पास टॉफल है, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं भी मिला, सो दे आर वेरी रेडी टू अप्लाई, क्योंकि अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट इंटरनेट और 2-4 घंटे रोज लगाने, घर में वैसे भी बोर हो रहे हैं, सो दे हैव लाइक कंड्यूसिव कंडीशंस, ठीक है। लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं ना दिया, यू वुड ऑलवेज बी ऑन द बैक फुट, यार अप्लाई करें ना करें, अप्लाई करें ना करें, ठीक है। सो दैट वुड बी डिफिकल्ट। सो इन ऑर्डर टू गेट दैट एज, अपना कम से कम लाइसेंस जरूर जारी करवाएं। लाइसेंस से मुराद इज टू गेट दोस टेस्ट रेडी, और उन चीज़ों को जरूर वो लेने, वो
इतना अर्सा जरूर वैलिड है दैट यू वुड बी एबल टू अप्लाई। सेकेंडली, अगर कोई चीज चेंज होती है ना, तो एज आई सेड अर्लियर कि इट्स अ ग्लोबल पैंडेमिक, इट्स नॉट रिलेटेड टू पाकिस्तान। तो वो हर किसी को पता है कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, तो हर चीज उसके हिसाब से शिफ्ट होगी, ठीक है। सो एडमिशन कमिटीज आर फ्लेक्सिबल। और एक गुड न्यूज ये है कि इन पैंडेमिक काइंड ऑफ सिचुएशन सम थिंग्स आर प्रीटी सिंपल, ठीक है। आई हैव सीन मेनी यूनिवर्सिटीज इन यूएस जिन्होंने एप्लीकेशन फी वेव ऑफ कर दी है। देयर आर यूनिवर्सिटी जिन्होंने जीआरई ऑलमोस्ट वेव ऑफ कर दिया या उसके बहुत लो स्कोर्स उन्होंने मतलब बिल्कुल। उसको रखा है। सो दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्चुअली लाइक गेट इनटू थिंग्स। Mhm. Sure. We'll go over the questions again. So there's a question for tips of GRE. We will go for the tips at the very last. Any other question if anyone has regarding the topic we are actually talking about right now, तो they can ask. अच्छा, so ये अगर हमने कोई मिस की हो चीज़ और आपके जहन में हो तो वो भी डिस्कस कर लें. It was very comprehensive. I think most of the things are generally covered. But general suggestion यही है कि again don't look for one stop solution. Try to do things pretty actively and don't make anything like a constraint to your applications. मतलब जो भी situation, I know it's difficult, it's understandable, लेकिन the world has to move on. चाहे वो online classes हैं, people are skeptical कि whether we should join a program or not. You should join because हमेशा याद रखें कि हमारी जो choices होती है ना decisions में, they depend on alternatives. So अगर alternatives में भी आप देख रहे हो कि economy suffer कर रही है, so why not to like grasp a good opportunity and have something under our sleeves rather than just waiting and sitting at home and like waiting for a miracle. That's a difficult thing to absorb, ठीक है। So rational part is कि आपके पास B plan क्या है। अगर pandemic में you are not able to do this, so what else you would be doing anyway? Jobs are suffering, plus if you miss out admission this year, you must know that next year there would be many more people who would be willing to apply. ठीक हो गया. अच्छा सोहेब, if someone is graduating, क्योंकि अक्सर लोग ना fall semester के end पे भी graduate कर रहे होते हैं. If someone graduates, gives his exams in January and results come in the starting days of February, मतलब पहले 10 दिन में February का आ रहा है, तो can he or she apply for Erasmus that year? And उसके जो मतलब अपने आजकल के दिनों में क्या वो अभी अपने फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखें, उसमें ये है कि फुल ब्राइट का तो बड़ा सिंपल सा रूल है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फुल ब्राइट नीड्स यू टू हैव डिग्री, फिजिकली डिग्री इन योर हैंड बाय द एंड ऑफ द ईयर इन विच यू आर अप्लाइंग। सो अगर 2020 की जो एप्लीकेशन हैं जिसकी फिलहाल डेडलाइन 15 जून है, इफ थिंग्स गो राइट, तो उस साल में अगर आपके पास डिग्री नहीं है, दे विल गिव यू अ कंडीशनल एडमिशन इन अक्टूबर जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर आप वहां तक जाते हो तो दे वुड वांट यू टू सबमिट योर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट बाय द एंड ऑफ दिसंबर। अगर आपके पास 1 जनवरी 2021 को डिग्री आती है ना, बेशक आपने दुनिया भर में भी गोल्ड मेडल लिया हो, यू वुडंट बी एलिजिबल, ठीक है। उसका लॉ तो सिंपल है, आपको ठीक है. 31 या 30 दिसंबर जो भी लास्ट डे ऑफ द ईयर है ना, उस दिन यू हैव टू शो द डिग्री एट मैक्सिमम। अगर उस दिन आपके पास नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, यू आर रिजेक्टेड फॉर दैट ईयर, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको नहीं मिलती दिसंबर में डिग्री, तो फिर आपने अगले साल अप्लाई करना है। और इरेस्मस का जहां तक बात है, इरेस्मस में एक तो याद रखें कि एवरी प्रोग्राम हैज अ डिफरेंट डेडलाइन, तो उसमें कोई रूल नहीं होता। उसमें यह कि रफली पीपल फ्लाई अराउंड अक्टूबर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल सितंबर अक्टूबर से रफली शुरू हुई हैं एप्लीकेशंस, तो इस साल लोगों ने अगर थिंग्स गो राइट तो पीपल वुड फ्लाई अराउंड अक्टूबर सॉरी सितंबर, अर्ली सितंबर टू मिड सितंबर फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। अब अगर तो आप पिछले यानी 2020 के जनवरी में ग्रेजुएट हो रहे हो, आपके खत्म हो रहे हैं, तो दैट इज फाइन। लेकिन इरेस्मस में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप ग्रेजुएट कब कर रहे हो, देयर इज नो फिक्स डेट फॉर दैट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जाने से पहले वीजा वगैरह के टाइम पे यू शुड हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जुलाई तक या अगस्त के शुरू तक अगर आपके पास डिग्री वगैरह नहीं है, और अगर आप लीगल प्रोसीजर्स फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के टेस्टेशंस, एचईसी की, डीओवी वगैरह के लिए, एम्बेसीज के जो काम है उनके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यू माइट गेट अ लिटिल लेट। लेकिन अच्छी बात है कि इरेस्मस इज अ लिटिल फ्लेक्सिबल। अगर आप हफ्ता 10 दिन लेट भी पहुंच जाओगे तो दे वुड अकोमोडेट यू, लाइक वो इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा डिले है, फॉर एग्जांपल यू आर नॉट गेटिंग इवन बाय अगस्त, तो देन काइंड ऑफ फिर कोई फायदा नहीं उस साल अप्लाई करने का। Shale, there's a question that says that if you have any information regarding Washington Accord, maybe it's irrelevant. If you have any information, then kindly guide. वेल वाशिंगटन अकॉर्ड एज पर माई नॉलेज, मैंने इसमें अगेन कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया, इज मोर और लेस रिलेटेड टू जो हमारी जो लोकल इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, उनकी जो एक्रेडिटेशन के ऊपर काम किया गया था यूएस में, दैट दे वुड बी डायरेक्टली एलिजिबल टू अप्लाई टू जॉब्स इन यूएस एंड दे वुड बी एलिजिबल। देखिए इसके दो पार्ट्स हैं।
अगेन मैं कोई बहुत ज़्यादा इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, वर्क इन दैट अलॉट, लेकिन जनरली दो चीज़ें मैंने इस पे नोटिस की हैं। एक तो ये कि अगेन एलिजिबिलिटी को आपने लाइसेंस नहीं समझना, इवन इफ यू आर एलिजिबल। देखें एलिजिबल तो कोई अमेरिकन कंपनीज ने वैसे भी कोई लॉ नहीं लगाया हुआ कि पाकिस्तान से लोग जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर आप अभी भी सर्च करेंगे यू विल फाइंड आउट कि अमेजोन ने ग्लोबल पोस्ट निकाली हुई है, उसमें उन्होंने नहीं लिखा कि वो पाकिस्तान इंडिया कोई भी बंदा अप्लाई कर ले, ठीक है। पहली चीज तो ये कि कोई ऐसा कोई रूल पहले भी नहीं था कि यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ, इससे ये है कि आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस जरूर मिल जाती है इन सर्टन प्लेसेस, लेकिन ये है कि अब जैसे अमेरिका की सिचुएशन है, रिसेंटली उन्होंने इमिग्रेशन पे पाबंदी लगा दी है, स्पेशली ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको अगर आप कैटर फॉर करके अगर आप देखते हैं कि यू हैव सम अपॉर्चुनिटी तो डू गो फॉर इट, बट एज सच मैंने अभी तक इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस अपने एक्सपीरियंस में देखी नहीं है कि समवन हैज टोटली टोल्ड मी कि अच्छा जी मेरे पास ये वाशिंगटन अकॉर्ड की वजह से मुझे कहीं पे जॉब मिल गई या मुझे कोई बहुत ज्यादा करियर में हेल्प हुई। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एज इट। चलें, सही है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन जो कि 3 दफा आ चुका है कि एनी टिप्स फॉर जीआरई। जीआरई के या प्रिपरेशन के श्योर, लिए आजकल घर में लोग हैं, एकेडमीज नहीं है, कोई बुक्स रिकमेंडेशंस आपके पास हैं तो फ्यू टिप्स इफ यू कैन गिव। बिल्कुल जी। देखें जीआरई के हवाले से अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, उसके ऊपर हम वैसे तो डिटेल में एक आवर भी कम होता है डिस्कशन के लिए, बट जनरली स्पीकिंग उसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, पहली बात तो ये है कि देयर इज गूगल ड्राइव लिंक जिसके ऊपर मैंने बहुत एसेंशियल मटेरियल अपलोड किया हुआ है से, तो आई गिव इट टू यू आफ्टर द सेशन, यू कैन पोस्ट ऑन द सेम लाइक वीडियो लिंक के नीचे, आप उसको पोस्ट कर दें, उसमें सारा परफेक्ट। मटेरियल है। फिर प्रिपरेशन के जो 4-5 स्टेप्स हैं वो ये हैं कि अकेडमीज कुछ ऑनलाइन आपको ऑफर जरूर कर रही हैं। इवन आई सॉ अ कपल ऑफ वेरी गुड फ्री वेंचर्स दिस ईयर सरप्राइजिंगली, जो कि बड़ी अच्छा इनिशिएटिव था फ्रॉम सम, लेकिन आई थिंक उनके वो खत्म हो गए एडमिट्स। एक तो ये कि आप ऑनलाइन अकेडमी स्टिल देख सकते हैं। मैं 3-4 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। एक आपको मैनहट्टन की 8 बुक सीरीज है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, नॉट फॉर द एक्सरसाइजेस क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बुक्स हैं, बट अगेन ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट्स तो चेंज नहीं होंगे ना सालों से, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो चीज़ें जीआरई में टेस्ट होती हैं दे आर वेरी गुड। लेकिन वो सेकंड रिसोर्स है, फर्स्ट रिसोर्स शुड ऑलवेज स्टैंड एज द ऑफिशियल ईटीएस की जो 3 बुक्स हैं। एक आपकी जनरल ईटीएस जनरल, फिर ईटीएस क्वांट और ईटीएस वर्बल। ये 3 बुक्स आर मैंडेटरी, प्रैक्टिस भी और कॉन्सेप्ट्स भी। मैनहट्टन 8 बुक सीरीज जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट्स नॉट प्रैक्टिस। और उसके अलावा अगर आप जो 5 LB है लोग उसको रिकमेंड करते हैं, मेरे ख्याल से वो कोई इतने ज़्यादा मॉडर्न में यूजफुल नहीं है। उसके अलावा जो चंद एक रिसोर्सेज हैं वो मैंने ड्राइव लिंक में डाल दी, उसको आप रैंडमली देख सकते हो। और ये जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, इनको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। अगर आपकी इंग्लिश जनरली गुड इनफ है तो आई हैव नेवर सीन कि उसी को बहुत सब्सटेंशियल फर्क पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता देता हूँ कि जो आपकी मैगूज के ऑनलाइन अकाउंट्स हैं दे आर वेरी यूजफुल, स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग 315 प्लस। उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं दे आर वेरी क्लोज टू एज पॉसिबल टू ऑफिशियल टेस्ट, ठीक है। तो मैं वो आप ले कोच सकते हो। एमएजी हाँ, और जो जी, जो मैगोज के जो आपका ऑनलाइन अकाउंट है उसको आप ले सकते हो, और वो भी डिस्काउंट पर भी मिल जाता है। यू हैव टू फाइंड आउट अ फ्यू पीपल जिनके पास सब्सक्रिप्शन हो तो आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो वो उसका अकाउंट लें, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिए डिफरेंट लेवल्स पे। हाँ, अगर आपका अगेन टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें, अगर आपका टारगेट 315 या उससे थोड़ा सा कम है तो देन मैगोज इज नॉट रेलिवेंट, आप उस पर खर्चा ना करें, फिर इज फाइन, ये जो मैं मटीरियल बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपका टारगेट 315 320 है या उससे ज़्यादा, यू आर टारगेटिंग लाइक वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन अमेरिका, तो फिर आप मैगोज से प्रैक्टिस जरूर करें। और एक चीज याद रखें कि जो ये मटेरियल है ना उसके अंदर भी अगेन डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है, तो आपने देखना है कि आपके टारगेट के हिसाब से यू शुड बी डूइंग दैट। और एक और चीज ये कि ईटीएस के 2 फ्री मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होते हैं बिकॉज दे हेल्प यू टू गेज योर एबिलिटी कि आप उस तरह टेस्ट कंडीशंस के क्लोज इनफ घर में बैठ के कितना एक्सप्लोर कर रहे हो। तो एक टेस्ट आप फ्री वाला शुरू में दे दें जब आप प्रिपरेशन शुरू करें, ताकि आपको पता चले कि वेर यू आर स्टैंडिंग, एंड देन मेक अप अ टारगेट। और सेकंड फ्री टेस्ट कहीं एंड ऑफ योर प्रिपरेशन टेस्ट से एक आधा हफ्ता पहले या 5-7 दिन पहले दे दें। और अगर आप एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा, जो अगर आप पे करके देना चाहते हैं, वो ईटीएस का ऑफिशियल टेस्ट है विच कॉस्ट लाइक $30-40, तो वो आप उसको दे सकते हो। या फिर जो मैगूज के प्रैक्टिस टेस्ट हैं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे, वो भी बहुत अच्छे हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज मोर ठीक लेस व्हाट यू है। नीड फॉर जीआरई। जीआरई के एग्जाम से पहले जीआरई की तैयारी कितने महीने पहले शुरू करनी चाहिए? दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा जाता है। इसका कोई अगेन एक आंसर नहीं है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 7 दिन के अंदर 333 भी ले लिया, एंड देयर माइट बी पीपल जिनका बैकग्राउंड सिमिलर नहीं होता या जिनके पास उससे कंडीशंस नहीं होती हैं, उनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग का नहीं होता, सो दे माइट इवन टेक मोर देन 6 मंथ्स और मे बी। एक चीज मैं यहाँ पे अगेन क्लियर कर दूं कि मैं हर चीज को बड़े लॉजिकल वे में लेके चलता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि जीआरई इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉर एग्जाम्पल 200
80 से स्टार्ट करें एंड देन यू स्टडी फॉर 2 years तो एकदम 340 आ जाएगा, हो सकता है सम पीपल माइट नेवर स्कोर 320 इवन आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स ऑफ लाइक स्टडी। तो इसलिए आपने उस चीज को तो ज़हन में रखना ही है कि पहली बात यह है कि इसमें आपने अपना टारगेट रखना है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर अप्लाइंग एंड व्हाट यू नीड, ठीक है। तो और कितना टाइम लगेगा वो आपके मॉक स्कोर पे डिपेंड करता है और आपके टारगेट पे। अगर आपका मॉक स्कोर फॉर एग्जांपल 280 290 है एंड यू वांट टू लाइक से गेट टू 315, तो यू माइट नीड अ कपल ऑफ मंथ्स, समटाइम्स अ लिटिल बिट मोर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये दूंगा कि जीआरई में कभी भी बहुत ज्यादा डिले मत करें फ्रॉम योर स्टार्ट टिल योर पेपर, क्योंकि इसमें आप ज्यादा टाइम लगाने का फायदा इसलिए नहीं है बिकॉज अगेन दिस इज नॉट अ मेमोरी टेस्ट कि आप 1 साल बायोलॉजी की किताब याद करोगे तो साल के बाद ज्यादा नंबर आएंगे बनस्बत 2 महीने के, नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट में नंबर हमेशा तब ज्यादा आते हैं जब आपकी प्रिपरेशन और टेस्ट में मिनिमम गैप होता है। तो आप बेशक 1 महीना रखें लेकिन उसको स्प्रिंट समझें, दिस इज नॉट अ मैराथन। पहले बेसिक्स को रिवाइज कर लें, कुछ इंट्रोडक्टरी बुक्स होती हैं, मैं वो भी मेरे उसमें ड्राइव लिंक में है, जो आपको थोड़ा सा मैथ्स को रिफ्रेश कर देते हैं, आपके मैट्रिक इंटर ओ लेवल के कॉन्सेप्ट, और उसके बाद डायरेक्टली गो टू द प्रिपरेशन एंड स्पेंड नो मोर देन 40-50 डेज। मेरा जो प्लान, मेरी जो यूएस की गाइड है, आपको इंटरनेट पे गूगल पे भी अवेलेबल होगी, तो आई सेंड अ ड्राइव लिंक। उसके अंदर जो प्लान दिया हुआ है दैट इज गुड इनफ फॉर 315-20, वो 40 डेज प्लान है। आई डोंट रिकमेंड मोर देन 40-45 डेज। अगर आप डेली 2-4 घंटे लगा रहे हो तो शुड बी इनफ। ठीक हो गया। चलें, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर सेशन टुडे। एक क्वेश्चन है, काइंडली डू कमेंट इफ समवन हैज अ गैप इन स्टडीज लाइक 5 to 10 years and have a good professional background, can he apply for any suitable Erasmus category? देखें अगेन ये जो गैप वाला क्वेश्चन होता है ना, अगर गैप के दो मीनिंग्स हैं, नॉट श्योर व्हाट पीपल मीन बाय गैप, तो मैं इसलिए पूछता हूँ। अगर तो गैप से मुराद आपकी है कि आपके एजुकेशनल गैप है 5 to 10 years, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई टोल्ड के इरेस्मस पे लास्ट ईयर देयर वाज अ फीमेल हु हैड 11 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो उनके भी सिलेक्शन हो गई। एक और लड़का था जिसका शायद 9 years एक्सपीरियंस था, 10 years एक्सपीरियंस, उनकी भी हो गई। इस साल भी लोग हैं जिनके साथ 8 साल एक्सपीरियंस है। तो अगर तो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल इन समथिंग रिलेटेड टू जो प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एरास्मस इज नॉट लाइक फुल ब्राइट, उसमें आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं करते, देयर इज अ कैटलॉग। तो अगर कैटलॉग में कोई भी रेलिवेंट प्रोग्राम है जहाँ आप एलिजिबल हो तो दैट वुड इवन हेल्प यू, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ बाय गैप यू मीन के समवन फॉर एग्जांपल इज अ हाउस वाइफ, उसने लास्ट 5-7 ईयर से काम नहीं किया, या कोई बंदा है जिसने 5-7 ईयर से कोई जॉब नहीं की या रेलिवेंट जॉब नहीं की, फॉर एग्जांपल समवन इज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर और समथिंग लाइक जनरल जॉब में, ठीक है, तो देन डेफिनेट सी बात है, फिर थोड़ा मुश्किल होता है एडमिशन। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन है, आई एम गोना टेक इट जस्ट ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। सवाल ये है कि आर देयर एनी यूनिवर्सिटी दैट ऑफर एमएस इन लिंग्विस्टिक्स स्कॉलरशिप, कोई देखिए यूनिवर्सिटीज ऑफर कर? अगेन इट्स अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन। एमएस इन लिंग्विस्टिक्स के लिए अगर आप जनरली पूछ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी तो बेतहाशा, लिंग्विस्टिक्स इज अ वेरी लाइक इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डिपार्टमेंट इन एनी यूनिवर्सिटी। तो अगर आप फुल ब्राइट पे अप्लाई करें यू कैन गो फॉर इट डायरेक्टली। एरास्मस में तो ज़ाहिर है इस तरह का प्रोग्राम शायद ना हो, लेकिन रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक्स हैं, आई एम श्योर उनके नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं, नॉन टिपिकल, यू हैव टू सर्च फॉर देम, बट मोस्ट ऑफ द मेजर स्कॉलरशिप्स डू हैव लाइक दिस कवर्ड। बाकी अप्लाई तो ज़रा आपने खुद ही करना होता है, आप चीवनिंग या कॉमनवेल्थ में भी कर रहे हो तो यू इजीली फाइंड आउट इन यूके, अमेरिका या किसी भी अच्छे कंट्री में। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक रिलेटेड कोर्सेज तो बड़े कॉमन होते हैं। ठीक हो गया। चलें ठीक है। Almost we are at end of our show. In fact, we took 10 minutes more than we were gonna have, and there are no more questions right now. I think we have answered all of the questions of the audience. Thank you so much, Suhaib, for coming live with us. You marked the end of our first week for this series, Your Rahnamai. The series week series was for education, and we covered most of the topics from scholarships, language medium, what degree should I go for, and then masters and higher education studies. Thank you so much everyone for joining us. We will be live. Thank you so much, Sohaib. Thank थैंक you. यू, We थैंक will यू। be live again on Monday. Again on Monday, 7:30 p.m. With a new topic and the new topic, inshallah. Thank you so much everyone for coming live with us. Allah Hafiz.